Pinch down. Ghulam Hassan, can you hear me? Good morning. Can you hear me? Okay, fine. The person joined just to start recalling the previous classes. What I will discuss that I have displaced on the board, written on the board. You recall just before to start, you recall the structures of amino acid only, nothing more than this. For this class, it is essential to know the structure of amino acid, any general structure. So only few students are left. So I start working. All of you know the structure of amino acid, so I am making from the one color. This is carboxyl H.
So I think almost all students have joined. So in the today's class, you have to say how the different amino acids get joined and how it is related with other chapters of our syllabus. The first, see, each amino acid has one has their carboxyl, another has amino. So during joining, what happened? There is a reaction between carboxyl of one amino acid and amino of another amino acid. It's one OH and it combines, release a molecule of water. Leaving behind this CNO and NNH, this CONH combined together what we call peptide bond or peptide linkage. So in this way, the two different amino acids get joined. So here just I have written joining of peptide bond. Now you have learned only a peptide bond. And first you note it down, then I will come to how it is related to our syllabus. When you complete it, then you write yes. Ghulam Hassan, Muhammad Samim has done. Other children, carefully make it. You have done it in one of two places in your book, even in the 12th, or it is in the 11th. But we have to find out where it is. Salil Batun has done. Muhammad Abdan done. Other children. Now see what happens. Question arises how this forms, and you all have studied. Recall your genetics. In 12th class, page 115. You all have done this one. Now I am recalling how it is related to our syllabus. I am recalling the part of molecular genetics, 12th 115, and I think you might be recalling this diagram. Like this, like this, like this, like this, like this. So what is happening here in the translation? This translation is nothing but this ribosome is joining this peptide bond, making the peptide bond that is given. So without this, how we can discuss the translation? If you know it, then hardly a translation will take a few minutes. Hence, I think you already calling this diagram on page number 12115, and these are the amino acids. So the peptide bond is made by, who makes this bond? So peptide bond is made in simple way. You know the name, this is the ribosome. This can be made by ribosome only. And you all have studied the role of ribosome in protein synthesis. That is nothing but making this peptide bond. It is either bacteria or any organism where there is a formation of protein, this ribosome makes. In page number 115, a specific part 23S ribozyme name is given. In ribosomes, 23S ribozyme makes this bond. So it is already given, so it should be very clear. Peptide bond can be made by ribosome, and in ribosome
23 is ribozyme. Ribozyme is nothing but the enzyme that we will discuss in enzyme when RNA functions as an enzyme. So objective question, which makes the peptide bond, ribosome or ribozyme, both will be the correct answer. Ribosome or ribozyme, no one can make this bond. In this way, I think, is it clear to you all? Abdan, Narges, Jera, this matter is clear. Ab see how it is related to our genetics. This word peptide bond, only word this peptide bond mechanism, you must know where it is given. I have discussed the 12th genetics part, but name peptide bond is your given in the 11th class in page number 151. So first 11th में आपको बता दिया है भैया कि इट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड. अब जो है इसको कोरिलेट ना कर पाते टीचर्स तो बच्चे को दिक्कत आती है यहाँ. तो दूसरी क्लास में हमारे एक दो बच्चे को ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट में परेशानी आने लगी थी, तो फिर हमने जेनेटिक्स को ही फिर दूसरे तरीके से स्टार्ट कर दिया जिनकी मैटर क्लियर हो जाए. अब देखो बच्चे, जब आप आओगे ट्रांसलेशन में 115 पे, तो मुझे 1 मिनट भी नहीं कहना पड़ेगा. अब आप इससे बात कर लो बच्चे डाइजेशन का. देखो ये कैसे रिलेटेड है. व्हेन यू ईट प्रोटीन, तो प्रोटीन इज, अब आप इज इट क्लियर, इसको नोट कर लिया. साइड में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखते चले जाएंगे, छोड़ दोगे तो छूट जाएगा. पेप्टाइड बॉन्ड इज मेड बाय राइबोसोम और राइबोजाइम, दोनों करेक्ट है. अब प्रोटीन का दूसरा नाम है, प्रोटीन इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड मीन्स दिस वन. अब दूसरी एमिनो एसिड आएंगे. अब यहाँ देखो दूसरे एमिनो एसिड के एक और आपको बना दूं, यहाँ इनकी कार्बोक्सिल H NH2, सेम रिएक्शन विल बी हैपन और एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगी. तो ये क्या बच जाएगा यहाँ, फिर यहाँ CONH and this one. तो इन दिस वे ये इधर भी जुड़ता चला जाएगा. तो ये जो एमिनो एसिड को मैं ऐसे दिखाऊं जो आपके जेनेटिक्स में है, यस, लॉन्ग चेन polypeptide. Poly means many, peptide means this one. The protein is also called as polypeptide chain. अब इनको डाइजेशन से और दूसरे पार्ट से जोड़ता हूं. प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन. अब देखो, इफ ये कॉन्सेप्ट यदि बच्चों को ना दिया गया हो तो उसे कहाँ दिक्कत हुई. आप प्लीज पेज नंबर भी लिखो, मैं बुक नहीं खोला. 12th क्लास के 151 पे अभी आपने बोर्ड दिया है तो सबको याद होगा. पिछली क्लास में भी हमने इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डाइसल्फाइड में बस डिस्कस किया था. अभी मैं डाइसल्फाइड के बारे में नहीं डिस्कस करूंगा. आप इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है N और यहाँ लिखी हुई है बच्चे C. तो ये जो एंटीबॉडी है मॉलिक्यूल, ये तो पॉलीपेप्टाइड है जी. दो है बी चेन, दो लाइट चेन. हम अभी उस पर बात करें जो ये N और C का क्या मतलब. N का मतलब है इनका ये एंड खत्म हो रहा है, यहाँ पर एमिनो ग्रुप है. इसमें इन N का मतलब इधर एमिनो. और इसी पेज को आप खोलोगे
तो यहां पर लिखा हुआ है एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, सॉरी एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट को यहां समझाने के लिए, एंटीजन इज द फॉरेन सब्सटेंस जिसको एंटीबॉडी बर्बाद करता है, तोड़ता है। तो इसका मतलब ये यहां पर तोड़ता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां हो गया, which of the following statement is true? Antigen is destroyed by the carboxyl site, amino site, both amino, carboxyl site, कुछ भी बना दे तो यहां पर लिख लेंगे। एक स्टेटमेंट हो गया, एंटीजन is destroyed by amino site of polypeptide. I repeat, antigen is destroyed by amino site of the polypeptide. अब आप देखो बच्चे, जो एक दो बच्ची को ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम था, तो वहां से हमने ये देख लिया कि वो बच्चे का कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता, और हमने यहाँ काम शुरू किया। अब बिसाइड्स द पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये सीधा हमारा जेनेटिक्स है, ये एंटीबॉडी है, हर जगह काम होगा। तो जैसे आपने डीएनए में पोलैरिटी लिखी थी 5 और 3, तो किसी भी पॉलीपेप्टाइड में दिक्कत हो तो आप लिख देना बच्चे, रिपीट करने को। मान लो अब ये चेन है, यहाँ लिख दिया मैं C और यहाँ लिख दिया N, बस। तो इस चेन से हम पकड़ लेंगे ये पॉलीपेप्टाइड है, ये इधर एमिनो है, इधर कार्बोक्सिल है। इधर दूसरा लाइन मार दिया हमने, यहाँ लिख दिया 3 प्राइम, इधर लिख दिया 5 प्राइम, तुरंत पकड़ लेंगे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब देखिए ये दोनों बुक में 2 जगह है, दोनों बुक में 2 जगह है। और हमने आपको फर्स्ट ही क्लास में कह दिया था, जो बायोलॉजी रटने की चीजें नहीं है, ये मैटर अंडरस्टैंडिंग करने का है, एक्सेप्ट सम साइंटिफिक ने। अब यहाँ देखो, यहाँ तक क्लियर हो गए बच्चे। अब जो इनका लिंक पॉलीपेप्टाइड का कहाँ कहाँ गया। अब दूसरा देखो, ये तो हमने जेनेटिक्स की बात कर ली, इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली। अब आप छोटे छोटे क्लास से पढ़ते होंगे डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है आपका, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, वो क्या करता है, इसमें एक मॉलिक्यूल वाटर ऐड कर देता है। तो जैसे एक मॉलिक्यूल वाटर ऐड कर दिया, ये ब्रेक हो गया, एमिनो एसिड अलग हो गया, यही तो हो गया डाइजेशन। अब आप रिकॉल करो जो भी आपने पढ़ा है, ट्रिप्सिन, पेप्सिनोजेन, जितने काइमोट्रिप्सिन, सारे क्या करते हैं, दे आर डूइंग हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये डाइजेशन है। डाइजेशन ऐसे पढ़ेंगे, बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया। 5 मिनट देख लो, फिर इनकी दूसरी पार्ट को खत्म कर। ये कहाँ कहाँ लिंक हो गया देख लिया आपने। हमने फिर मैं रिपीट करता हूँ बच्चे, क्या 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 था आपने। हमने बनाई 2 एमिनो एसिड को ज्वाइनिंग, तो क्लेरिफाइड पेप्टाइड बॉन्ड। देन हमने कहा प्रोटीन इज ए पॉलीपेप्टाइड। जब आप प्रोटीन खाते हो तो यू आर ईटिंग पॉलीपेप्टाइड। तो डाइजेस्टिव एंजाइम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, और हाइड्रोलाइज करके आपके बॉडी में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर सेल में चला गया। अब सेल के अंदर फिर से आपकी राइबोसोम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जोड़ देती है। दिस इज जेनेटिक्स।
तो इट वॉज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स। अब इसका एक पार्ट और बचा है, उसको कंप्लीट कर फिर वापस आ जाएंगे फुली। अब आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ज्यादा टाइम नहीं लगे, बेसिक्स समझ में आ गई। तो डीएनए की गाइडलाइन में यही अमीनो एसिड को जुड़ना है और यही मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। डीएनए की केमिस्ट्री आप सब जानते हो, आरएनए आप जानते हो। डीएनए आरएनए से बोलता है और आरएनए अमीनो एसिड को जुड़वा लेता है राइबोसोम की मदद से। वही आपकी चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। बच्चे अब आगे बढ़े, यस बोल दो बच्चे, तो फिर आगे बढ़ो। किसी को डाउट है तो डाउट लिख देना। Should I go ahead, Jada? Yes, good. अब मेन पार्ट तो हो गई, लेकिन फिर भी बुक में एक पार्ट है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, जो आपने टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। नाम सुना होगा आपने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और डोमेन एंड वाटर। अब आप देखो, जब आपने 12th क्लास की जेनेटिक्स पढ़ी है तो ये 12th का 115 पर क्या होती है। इससे पहले मुझे एक चीज और डिस्कस करनी थी, ज्यूटर आयन, वो नहीं किया हूं, इसके बाद कर देता हूं। ज्यूटर आयन भी जरूरी थी अभी, जिस पर ये ज्यूटर आयन इससे पहले होनी थी, बता दो। अब पॉलीपेप्टाइड जो ऐसे बना हुआ है, राइबोसोम बना है, आपने देखा कि उसमें जेनेटिक्स में 115 पर ये लॉन्ग लिखा हुआ है, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। तब ट्रांसलेशन के बाद जब ये साइटोप्लाज्म में निकलता है सीधा चेन, स्ट्रेट चेन, तो ये होता है प्राइमरी। अब आप प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्वाटरनरी को ऐसे समझिए, पहले एक लेमैन की लैंग्वेज में, जो आपको एक बड़ा सा रोल दे दिया धागा का, जिससे आपके कपड़े बुने हुए हैं, वो पूरा रोल दे दिया। अब कहता हूँ बच्चे इसको पहन लो आप, तो कह सर ये क्या बात करते हो, ये मैं रोल कैसे पहनूं। तो उसे क्या किया जाता है, उसे मशीन से या हाथ से पहले उस धागे को बुना जाता है। बुन के बड़ी बड़ी शीट पर आ गई, और मैं कहूँ ये सीट पहन लो, तो ये भी सर मैं कैसे पहनूं। तो उसे क्या करेगा टेलर मास्टर, कट कुट करेगा, आपके हिसाब से डिजाइन करेगा, बटन लगाएगा, चुभ देगा। लाइक दिस, ये जो प्रोटीन बना प्राइमरी प्रोटीन, ये सीधे धागे की तरह है। अब ये भी कोई काम के नहीं है जब तक कि उसी धागे की तरह इनको मोड़ा न जाए, फंक्शनल न बनाया जाए। तो मोड़ने का ही जो स्टेज है उसी को बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी
क्वाटरनरी, जैसे वो धागे से आपके शर्ट बनने तक। तो अब देखो इसमें क्या क्या चेंज, ये आपकी केमिस्ट्री में भी आई होगी बायोमोलिक्यूल्स में, 11th में भी है। अब देखो हमने एक चीज छोड़ी है, बताऊंगा, ज्यूटर आयन, बाइपोलर आयन। तो अभी हमने एक चीज तो डिस्कस कर दिया था, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो किसी एक पर्टिकुलर पीएच पर मान लो साइटोप्लाज्म की जो भी पीएच है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, उस पर या पॉजिटिव चार्ज होंगे या निगेटिव चार्ज होंगे। निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते डिफरेंट एमिनो एसिड पर चार्ज होते। वो कैसे होता है वो ज्यूटर आयन, बिकॉज सबका स्ट्रक्चर अलग है, अलग एक ही पीएच पर है तो चार्ज। अब यहाँ पर क्या होती है, तो अब देखो सबसे पहले डिफरेंट एमिनो एसिड हैज डिफरेंट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली आयनिक बॉन्ड बनेगा, एक दूसरे को कांटेक्ट करेगा। तो जैसे ये कांटेक्ट करेगा तो ये जो धागा है वो फोल्ड हो जाता है दो तरफ से। पहले आप समझ लें फिर बनाओगे। तो इनके मोड़ने को पहला लंबे हेलिक्स की तरह बोला, इसको बोला अल्फा हेलिक्स। अब दूसरा भी छोटा यहीं पर बनता है, छोटे 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 जैसे कपड़े बनते हैं, कॉलर कट करते हैं, वैसे बनता है, इसको बोलते हैं बीटा शीट। तो अब जैसे बच्चे सबसे पहले तो आए आयनिक बॉन्ड के कारण, लेकिन जैसे ही एमिनो एसिड नजदीक नजदीक आया तो यहाँ पर नॉन कोवैलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड भी डेवलप हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। और वैन डर वाल्स फोर्स भी आ गया। अब आपको ना पता हो तो मैं बता दूं सबको। तो प्रोटीन के फोल्डिंग में 3 नॉन कोवैलेंट बॉन्ड का जो है वो काम होता है। एक सबसे पहले तो ये आयनिक बॉन्ड बने, दूसरा यू नो द हाइड्रोजन बॉन्ड, और वान डर वाल्स फोर्स इज द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। निगेटिव निगेटिव है, डिपेंड करेगा। तो दिस 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म। अब जो आपकी एक स्ट्रेट धागा था वो थोड़ा मुड़ गया। अब इनके बाद अब ये क्या होगा, ये अल्फा हेलिक्स बीटा से ये आपस में फिर जुड़ गए एक साथ। अब इसको बोला टर्शियरी एडोमेन। अब इसी तरह का जैसे कंप्लीट 2 डोमेन, ये आपस में जुड़ गया, ये बना आपका क्वाटरनरी, और ये आके फंक्शनल होता है। ये ऐसा डायरेक्ट ऐसा नहीं होता, बट ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी की। अब आप इसको बना लो, और जब बन जाए तो बताओ, फिर आगे की बात करता हूँ। जब हो जाए तो आप लिखते हैं समझ के।
I think you might have completed. तो अब ये जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, दिस इज द फंक्शनल प्रोटीन। अब आप देखो, जो सोचो फंक्शनल प्रोटीन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। अब इसमें 11th में भी एक बॉक्स बनी थी। अब ये प्रोटीन कुड बी ऑफ एनी टाइप्स। अब ये मान लो, इट कुड बी फाइब्रस, इट कुड बी ग्लोबुलर। अब देखो, हम विदाउट प्रोटीन पढ़े, हमने हिस्टोन पढ़ लिया था, तो उस समय उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है जब प्रोटीन के बाद आएगी। ग्लोबुलर प्रोटीन जो था, ये गोला था। If the shape of the protein is round, it's called a globular protein. So histone was a globular protein. Albumin. तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं, देखो ये डिपेंड कर रहा है जो कौन से एमिनो एसिड्स है, क्या है, दैट इज, और ये सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर। ये भी आपके सिलेबस में। अब हमारी, जो हमने पहले भी कहा था, हमारी जो कई हार्मोन्स हैं, वो भी प्रोटीन है। अभी आता हूं। अभी जो प्रोटीन इज फाइबर लाइक, फाइबरस। कहां पर? अब देखिए, मसल्स में, मसल्स पढ़ेंगे आप, मूवमेंट, लोकोमोशन। वहां पर एक्टिन आएगा, मायोसिन आएगा। आपके बाल जो है वो केराटिन है। दीज आर फाइब्रस प्रोटीन, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अब देखो, यही 20 एमिनो एसिड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टी को बदल दे रही है, फंक्शन बदल देती है। एंजाइम है, वो भी प्रोटीन है, और वो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर रही है। सो दीज आर द, दिया हुआ है, पिछले साल भी आपकी मेडिकल में एक आया था ग्लूट 4 के बारे में। ग्लूट 4 को अब आगे बताऊंगा। अब ये बेसिक्स बता दूं गया। तो नाउ वी हैव कंप्लीट द प्रोटीन अप टू एक्सटेंड, जिससे कि हम जेनेटिक्स अब आराम से कर सकते। तो अब आप बताएं, जो हम आगे आपकी जो है जेनेटिक्स में, ये क्लियर हो गई। जो डीए जो हमने बताया था पिछली क्लास में कल, तो सेंट्रल डोगमा। अब हम इस पे आ सकते हैं। सर्टेन पार्ट, जो सेंट्रल डोगमा है, ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाता है, और आरएनए के गाइडलाइन में जो आपने पढ़ा होगा, जेनेटिक कोड प्रोटीन बनती है। तो यही केमिस्ट्री है। ये डीएनए जिसमें एटीसीजी बेस आपने पढ़ा, ये अपनी गाइडलाइन में बनाता है AUCGU। अब इनकी लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के हिसाब से एमिनो एसिड ज्वाइन हो जाती है, एमिनो एसिड्स गेट ज्वाइन, और जिसको आप ट्रांसलेशन कहते हो। और यही कहानी आपकी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की है। दिस इज द स्टोरी ऑफ होल मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। Got the concept what we have to study in the molecular genetics? अब ये क्लियर हो गया, जो विदाउट दिस बायोमोलिक्यूल्स व्हिच वाज ए पार्ट ऑफ द 11th क्लास, जेनेटिक्स में बच्चों को इसलिए परेशानी आती है जब इसके अंदर कुछ भी नहीं। थोड़ा सा केमिस्ट्री इनका बता दो, बच्चे करने लगेंगे फटाफट साथ के साथ। तो नाउ यू टेल मी। अब आपकी, हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को पहले कंप्लीट कर लें, व्हाट एवर द चैप्टर यू वांट, क्योंकि अब करेंगे तो कुछ बच्चे को हाथ से हमने जो कर दिया था चैप्टर डीएनए का, सेंट्रल डोगमा, और हमने ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट वर्ड भी डिस्कस कर लिया था, कुछ बच्चे को दिक्कत थी। तो नाउ यू टेल, शुड आई कंप्लीट द होल मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स फ्रॉम ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट टिल लास्ट, या कोई और चैप्टर आप चाहते हैं? तो आप आपको लिख दो, फिर अकॉर्डिंगली हम चलेंगे।
because our base is ready for molecular genetics. We have already covered the biomolecules. वहां से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम बना लेंगे. आप give your opinion. We have so many chapters to do. अब हम इसके बाद जेनेटिक्स पूरी कर लें या आप फोटोसिंथेसिस रिस्पिरेशन करें, जो भी चैप्टर करें बायोमोलिक्यूल्स पर बेस्ड ये चैप्टर्स हैं. 11th के फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, यहाँ genetics, molecular genetics, all are based on the concept of this which you have discussed, and I think you are comfortable now. Genetics, ठीक है भाई जयराम. तो I think इसमें से अब हम genetics पर बात करें तो एक बात और बताएंगे. कुछ बच्चों का क्लियर है, that I know, लेकिन यदि किसी भी एक दो बच्चे को नहीं है तो फिर दिक्कत होगी ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट से. अब हम सबसे पहली मैटर लिखते हैं. डीएनए जो है वही सब कुछ है, जो हमारे सब कुछ है, लिविंग को लिविंग रखे हुआ है. तो उसके लिए हम वर्ड लिखेंगे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. का कोई भी चीज मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या हो गया? दैट इज एनी व्हाट एवर द जेनेटिक मटेरियल, it must carry all the information necessary for an organism. जो आपको आगे चल के वो 03 पर दिया था. एनीवे पॉलिटिक्स में देखें, जो भी जेनेटिक मटेरियल है उनका मतलब ये है उनको उस ऑर्गेनिज्म की पूरी इंफॉर्मेशन है. मान लो जैसे जायगोट बनती है तो जायगोट में क्या है भैया? वही 23 क्रोमोसोम मेल से, वही 23 क्रोमोसोम फीमेल से. तो आया तो केवल डीएनए. अब वो जायगोट ह्यूमन ही बना देता है. वही जायगोट माइक्रोस्कोप में आप मोंकी का देखेंगे या डोंकी का देखें तो एक ही जैसे दिखेंगे आप. बट व्हाट मेक्स कन्वर्ट्स इट इनटू चेंजेस. तो इसका मतलब हो गया उस डीएनए में लिखा हुआ है जो भैया ये ह्यूमन बनना है, ये मोंकी बनना है, ये डोंकी बनना है, ये बर्ड बनना है और ये प्लांट बनना है. तो उसकी लैंग्वेज में कैसे लिखा हुआ है? तो ये है, ये दैट इज द डेफिनेशन. DNA is the genetic material. It must carry all the information necessary for an organism. तो इसी चीज को प्रूफ करने के लिए तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. आपके
आवाज आ रही है आपको? आर यू गेटिंग माई साउंड? बीच में ऑटोमेटिक कुछ गड़बड़ हो गई थी। आपको आवाज आ रही बच्चे? गुलाम मोहम्मद सलीम, ठीक है। जयरा, ठीक है। अब सुनो मैंने क्या कहा। पहले हम चैप्टर आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आपसे 2 मिनट। तो आपने कहा था ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो व्हाट आई रिपीटेड, तो हमारी जो नीट में कंपटीशन जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में नहीं होती। नहीं होती का मतलब पढ़ना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो इंटरेस्ट, बच्चों की इंटरेस्ट होती है, सबकी इंटरेस्ट होती है, क्यों हमारी बॉडी पार्ट है। तो बड़ी से इंटरेस्ट से आदमी सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सारे पढ़ लेते हैं। तो वो आपको 99% बच्चे का होता है कंप्लीट। और हमको 1 वीक लगेगा, हम 1 वीक में सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको कर देंगे। उसमें कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो एक ही दिन में एक चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे आप। नथिंग टू, मैं पहले बता दूंगा, आप पढ़ के आएंगे, 1 दिन में मैं निपटा दूंगा। जो मेरा आपको लाइन पर लाने का था वो मैं ले आया। अब हम कहीं भी चले मेरे को दिक्कत। जेनेटिक्स में अब ये बात आपकी समझ में आ गई है मैटर। जस्ट उनकी केमिस्ट्री समझ गए हैं। जो डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन देगा, आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। कि सेंटर में जैसे प्राइम मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर को देते हैं, चीफ मिनिस्टर वहां वर्क एग्जीक्यूट करते हैं, लाइक दैट। तो अब उस दिन की डिस्कशन, अब ये डिस्कशन जो है, जो डीएनए पर सारे इंफॉर्मेशन जिसका है वही बनेगा। बैक्टीरिया का डीएनए है तो बैक्टीरिया बनेगा, वायरस का डीएनए है तो वायरस बनेगा, ह्यूमन का है तो ह्यूमन बनेगा। तो इसी चीज को प्रूफ करने के लिए ग्रिफिथ का 2 एक्सपेरिमेंट आपके बुक में है। तो मैक्सिमम बच्चे ने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बता दी थी, पर 2-3 बच्चे का मेरे पास में आ गया था जो उन्हें दिक्कत। तो अब शॉर्ट में कर लो। जिन बच्चे का है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो इन्होंने ईयर भी आप याद रखेंगे जिस ईयर में हुआ है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इन्होंने क्या कहा, यदि इनका यदि हम कंक्लूजन में है आ जाए, तो बैक्टीरिया का यदि डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए विल मेक बैक्टीरिया। यही ना प्रूफ किया था जी। बैक्टीरिया का डीएनए है तो बैक्टीरिया बनाएगा। इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट में जो है वायरल का डीएनए है तो वायरस बनाएगा। ये तो आपको प्रूफ करना है, क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म लेके ये एक्सपेरिमेंट हम कर नहीं सकते। तो अब देखो, जिन बच्चे का छूट गया था, जिसने थोड़ा सा मुझे मैसेज भी किया था डाउट के लिए, वो बच्चे देख। ग्रिफिथ एक्चुअली ही वाज अ ब्रिटिश फिजिशियन, तो ही सेलेक्टेड बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इन्होंने सेलेक्ट किया बैक्टीरिया क्योंकि इस पर एक्सपेरिमेंट करना आसान होता है। और ये बैक्टीरिया का 2 स्ट्रेन होता है, वेराइटी होता है। एक को बोलते हैं आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। एस एंड आर। एस का मतलब हो गया स्मूथ, स्मूथ का मतलब हो गया इनकी जो वॉल है वो स्मूथ है जी। और आर का मतलब हो गया रफ, इनकी जो वॉल है वो रफ है जी। तो दोनों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ही है। लेकिन बीमारी जो होती है निमोनिया का, जो आपने पढ़ा है निमोनिया में क्या होता है, तो ये एल्वोलाई ऑफ लंग्स आपने पढ़ा होगा रिस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसे। और अभी भी जो कोविड-19 ये एल्वोलाई ऑफ इंफेक्शन में, इसी में तो वायरस आके सारा काम करते हैं।
तो ये बैक्टीरिया आके इसके अंदर इन्फेक्ट कर देते हैं, WBC और फ्लूइड भर के इसके अंदर, प्लस WBC तो ऑक्सीजन लेना बंद होता है। तो ये जो है वो बीमारी से ये फैलाता है, तो इसको बोलेंगे पैथोजेनिक, इसको बोलेंगे पैथोजेनिक। तो एस फॉर्म पैथोजेनिक बिकॉज इट कॉजेज डिजीज। इसको बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक, ये बीमारी कॉज नहीं करता है, किसी को इसका इन्फेक्शन भी हो गया तो पता ही नहीं चलेगा। तो इस बेसिस पर उनका एक्सपेरिमेंट था। अब जिन बच्चे का डाउट रहा हो वो पहले यहाँ से बेसिक देख लो। जो ग्रिफिथ को ने इसने ये कहा जिसका DNA होगा वही बनेगा, लास्ट में वही प्रूफ करना था जो एस का DNA है, एस बैक्टीरिया बना रहा है। तो अब कैसे किया उन्होंने, वो आई एक्सपेरिमेंट में शॉर्ट में 2 मिनट। तो I think majority of you are aware he injected S form in mice. माइस को इंजेक्ट कर दिया तो माइस मर गया, राइट। He injected R form, तो R नॉन पैथोजेनिक है, माइस अलाइव रहा, जिंदा, कुछ नहीं हुआ। हार्ड में क्या क्या उसने, हीट किल्ड S, जिस पर मैं थोड़ा सा बताया था, एक दो बच्चे को समझ में नहीं आता। हीट किल्ड S इंजेक्टेड इन माइस और माइस रिमेन अलाइव। इसका मतलब ये हो गया, he took the bacteria in a tube, इस लिक्विड मीडिया में बैक्टीरिया था और इसको इन्होंने हीट कर लिया, हीट करने के बाद इंजेक्ट किया। मतलब हीट डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिसिटी, क्योंकि बैक्टीरिया का जो एक्चुअली जो लंग्स में इंफेक्शन आती है वो वॉल के कारण होती है इमीडिएट, नॉट फॉर DNA। DNA तो वॉल बनाती है, इनके कारण हो रहा है। तो आपने हीट कर दिया, हीट कर दिया तो इन्फेक्शन नहीं हुआ, माइस रिमेन अलाइव। दिक्कत कुछ बच्चे को आती है लास्ट वाला में, जिसमें आपने हीट किल्ड एस, जिससे माउस नहीं मरता, इसको आपने लिविंग आर के साथ मिक्स कर दिया ट्यूब में और इंजेक्ट किया, तो माइस मर गया। अब ये बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो बात आई, जो हीट किल्ड एस से माइस नहीं मरता, आर से नहीं मरता, लेकिन दोनों को मिला दिए तो ये क्यों मर गया? ये तो ग्रिफिथ की भी समझ में उस समय नहीं आई थी, ठीक है, ग्रिफिथ की भी समझ में नहीं आई थी। इसको बाद में इनके दोस्तों ने काम किया, एवरी मैक्रोएड मैकर्टी। लेकिन यह हुआ क्या था ये मैं आपको उस दिन बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं। तो बुक में जो लाइन है सम हाउ गेट ट्रांसफॉर्म, हुआ क्या था जिससे आप प्रूफ करेंगे जो जेनेटिक मटेरियल। तो जब आपने इसको हीट कर दिया तो बैक्टीरिया तो खत्म हो गए, लेकिन उनके जो DNA थे वो DNA स्पर्म का तो बच गया। और बच क्यों गया था ये मैं आपको पहले बताया था, जब आपने हीट किया था तो DNA के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए थे, और जब आपने कूल किया तो दोनों स्ट्रैंड जुड़ गए। ये अगले चैप्टर पे आएगा। अब आपने जब इनको लिविंग के साथ मिक्स किया तो सिर्फ DNA, ये DNA ऑफ एस है, ये इनके अंदर आ गया, और सिर्फ इसका स्पर्म का DNA अंदर गया। यहाँ पूरा स्पर्म नहीं है, देखो सिर्फ क्या गया, DNA गया, सिर्फ DNA। I'm taking another pen.
अब जब आपने माइस को इंजेक्ट किया, माइस डाइड, मर गया, और जब उसकी ब्लड एग्जामिन हुआ तो उसमें से लिविंग एस और आर दोनों निकल आए, तो आर निकल आए तो कोई बड़ी बात नहीं। लिविंग एस कहां से निकल पाया? जब आपने प्रूफ किया है जो ओनली डीएनए एंटर, तो इसका मतलब इस एस फॉर्म के डीएनए में कैपेबिलिटी थी जो पूरा का पूरा एस फॉर्म बना दे। तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन ओनली डीएनए एंटर्स, by entry of DNA whole S form was formed। तो इसलिए इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, इस डीएनए में यह काबिलियत थी कि पूरा का पूरा बैक्टीरिया बना देगा। तो इट वाज कैरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म। अब जिन बच्चों को डाउट था वो लिखेंगे। क्या अब मैटर क्लियर हुई? और कुछ बच्चे को ऐसा भी रहा होगा जो मैटर, अब आगे जो जेनेटिक्स में पेज है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट के बाद से हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, जितने स्पीड में आप पढ़ के आएंगे उतने स्पीड में अब आपको दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है। तो अब आप ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को भी ढंग से जान गए। अब आगे का जो प्रूफ है फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल, हाँ 5-5, 7-7 मिनट लगेंगे, निकल जाएगा। तो जिन बच्चे का डाउट था, नाम तो मैं एक दो का जान रहा हूँ, एक दो का नहीं जान रहा हूँ। आई रिसीव द मैसेज विदाउट नेम, तो वो आप लोग लिख दोगे मैसेज पर अंडरस्टूड। अब इस हिसाब से हम चलेंगे। प्लीज आप पढ़ के आइए, जल्दी जल्दी निकलेगा। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हो गए, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बाद करते चले जाएंगे। लास्ट मिनट